Okay. So before I start, anything that anybody wants to say? तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, ऐसा कुछ है जो कोई कहना चाहता है? Vaishali. इंग्लिश मध्ये सांग, कारण माझेच रिॲक्शन्स येत आहेत. नाही सांग, जसं सांगता येईल सांग. Right. Benefit. Others benefit. Means, I'm not for myself, but I I'm see. doing for others. Right. And in this way, we give ourselves Right. protection or feeling good about that. Yeah. I'm doing that is not wrong. Then such kind of many beliefs we have in our mind. And so I want to be more clear about it. Right. Yeah. Yes. That isn't Atma Drishti. Yeah. तो उसको हम आत्मदृष्टि नहीं कहेंगे. It's a result of Atma Drishti. वो आत्मदृष्टि के कारण वैसा हुआ है. So Atma Drishti is very deep down. आत्मदृष्टि जो रहती है बहुत ही गहराई में रहती है. We have lots of drishti, lots of views. तो बहुत सारी हमारी दृष्टियां होती है, बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं. But they're above the level of the surface of the ocean, as it were. Yeah. लेकिन वो सारे दृष्टिकोण जो है वो समुद्र की सतह के ऊपर होते हैं, अगर आप देखें वैसे. Atma Drishti is much deeper down. लेकिन आत्मदृष्टि जो रहती है वो बहुत ही अंदर हमारी गहराई में होती है. But all the other views, like the one you talked about, stand on that. लेकिन बाकी के सारे जो दृष्टिकोण होते हैं, जिस प्रकार के आपने भी एक दृष्टिकोण की बात की है, वो उस दृष्टि के ऊपर खड़े रहते हैं. Because, for instance, you've got a view that actually you're not really angry, you're just acting for the benefit of others. So that's a view. तो जैसे कि आपने कहा कि आपको तो वास्तव में उतना गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन जो आप गुस्सा कर रहे हैं दूसरे की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो वो एक दृष्टिकोण है. But underneath that is the belief in I as something important and permanent. उसके तह में भी एक विश्वास होता है कि वहाँ पर एक मैं हूँ जो महत्वपूर्ण है. But well done for trying, because that's the one that's least easy to see. Yeah. लेकिन अच्छा प्रयास है जो आपने किया, क्योंकि वो देखना उतना मतलब आसान नहीं है. Because it's below the level of our investigation. क्योंकि हम जो खोजबीन कर रहे हैं उस खोजबीन के भी सतह के वो नीचे हैं. Anything else? Otherwise, I'll go on from there, because that's the point that we need to explore next. तो कुछ और है क्या? नहीं तो मैं वहाँ से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वहीं पे हमें आगे जाना है. There's a desire in human being that he wants to survive forever. So does I develops from this desire? Well, of course, prior to the feeling of wanting to survive forever is the feeling that there's an I that you want to survive. Not only survive,
Yes, live forever, yeah. But still, there's an idea of an I that wants to survive forever. तो वहाँ पे मैं की एक कल्पना होती है जो मैं हमेशा ही जो है वो जीवित रहना चाहता है. Do you see what I mean? You've got an idea of yourself, and therefore you can think of that self as continuing forever. तो आपके स्व की या आत्म की आपकी एक कल्पना होती है और फिर आप ऐसा सोचते हैं कि ये स्व या आत्म जो है वो हमेशा जीवित रहने वाला है. Obviously, that's getting quite deep down. It's getting down towards what we're talking about. तो हम गहराई तक जा रहे हैं और हम उसी गहराई तक जा रहे हैं जिसके विषय में हम बात करना चाह रहे हैं. So let's have a deeper look then at what Atmadrishti is. तो फिर और गहराई तक हम देखते हैं कि आत्मदृष्टि क्या है. Because this is what the Buddhist tradition has most to say about, and what the six element practice is directly dealing with. तो इसके विषय में बौद्ध परंपरा के पास कहने के लिए बहुत कुछ है और 6 धातुओं का ध्यान है इसी बात से ताल्लुक रखता है. So what the Buddhist tradition tells us is that we create in our minds conceptually the idea of a self. तो बौद्ध परंपरा हमें क्या बताती है कि हम हमारे मन में सैद्धांतिक रूप से मैं की कल्पना निर्मित करते हैं. And it's got these 3 characteristics. और उस मैं के ये 3 गुण धर्म होते हैं. It's permanent. वो स्थायी होता है. It lives forever. वो अनादि अनंत काल तक रहता है, सनातन है. It's always been. वो हमेशा था. It will always be. और वो हमेशा रहेगा. That's at the deepest level. और ये जो हमारा विश्वास या यकीन होता है बहुत गहरे स्तर पर होता है. Then it's independent. और वो जो है आत्मनिर्भर है, किसी और पे निर्भर नहीं है. It's not created by anything. वो किसी दूसरी चीज से निर्मित नहीं हुआ है. Nothing can destroy it. और कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती. It's independent of any conditions. किसी भी परिस्थितियों पर वो निर्भर नहीं है, उनसे आत्मनिर्भर है. And finally, it's a single thing which cannot be divided further. और अंत में वो एक ही चीज है जिस चीज को और छोटे हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता. So it's not easy to see why these 3 things are defined. और इस बात को देख पाना इतना आसान नहीं है कि ये 3 गुण धर्म क्यों बताए गए. So what is said is that if there is such a thing as a self, it must be permanent. तो अगर ऐसी कोई चीज है जिसे स्व कहा जाता है तो वो स्थायी सनातन होनी चाहिए. A self in the sense of an atman. और जब हम स्व कहते हैं तो आत्म इस दृष्टिकोण से. Because if it changes, then it's no longer the same thing. क्योंकि अगर उसमें परिवर्तन है, बदलाव है, तो फिर वो वही चीज नहीं है, दूसरी चीज बन गई है. So then you've got 2 selves. और फिर आपके पास 2 स्व हैं. Or many selves on the way, yeah? या फिर एक ही राह पे बदलने वाले बहुत सारे स्व हैं. But what we do is we think back over our lives and we think of there being a single I all the way through. लेकिन होता क्या है कि हम अपने जीवन में पीछे की ओर सोचते हैं और हम सोचते हैं कि एक ही स्व है और वही जैसे के पैसा आगे बढ़ा जा रहा है बिना किसी बदलाव. Just recently, my nephew has been getting a lot of family photographs on the internet. तो मेरा अभी जो भांजा है हाल ही में बहुत सारे हमारे परिवार के जो है चित्र तस्वीरें डाल रहा था इंटरनेट पर. And there's one picture of my mother with a baby in her arms. और वहाँ पर एक तस्वीर है मेरी माँ की और उसकी गोद में एक बच्चा है. Little Subhuti. छोटा सुबुती. This little bundle of flesh. Yeah. तो मांस का बस छोटा सा एक गोला. And you look and you think, that's me. और फिर आप उसको देखते और सोचते वो मैं हूँ. Is it really me? क्या वो सच में मैं हूँ? Yes, there's a continuity between that little baby and this big baby here. तो हाँ, वो एक जो छोटा सा बच्चा है और ये जो यहाँ पर एक बड़ा बच्चा है, उन दोनों बच्चों में एक निरंतरता बरकरार रही है. But there's not the same. लेकिन वो एक ही नहीं है, एक जैसे ही नहीं है. But we think
that's me. लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि वो मैं हूँ. Even I think of what I did yesterday and I think I did that. और मैं ये भी सोचता हूँ कि कल मैंने क्या किया था और मैं सोचता हूँ कि मैंने वो किया था. But so much has happened in between now and yesterday. लेकिन आज में और कल का जो समय है उसके बीच में बहुत सारी चीजें घटित हो चुकी But हैं. I project onto it the idea of an I that is permanent. लेकिन मैं उसके ऊपर एक कल्पना थोपता हूँ मैं की, और ऐसे मैं की जो कि स्थायी था, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. Yeah, is that clear? So it's something we do conceptually, we think of it. तो समझ में आया क्या हो रहा है? तो ये सैद्धांतिक रूप से हम करते हैं, हम सोचते हैं, ये सोच में हमारी इसको निर्माण करते हैं. In English, the word we use is impute. और अंग्रेजी में एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं इम्प्यूट. हम उसके ऊपर वो थोपते हैं, लाते हैं. We think something into it. Yeah. तो कोई चीज के अंदर हम उसको डालते हैं, स्थापित करते हैं. So we think into our experience the idea of a permanent I. तो हमारे अनुभव के अंदर हम एक कल्पना को डालते हैं, इस मैं की कल्पना को डालते हैं, उसके विषय में हम सोचते हैं कि यहाँ पे एक मैं है. Then we think of it as independent. और फिर हम उसके विषय में ऐसा सोचते हैं कि वो आत्मनिर्भर है. That little baby and this man now, I think of as the same me. और वो छोटा बच्चा और अब ये जो बड़ा आदमी है, हम इसके विषय में ऐसे ही सोचते हैं कि वो मैं ही हूँ. And I think that it's there, independent of any conditions. और मैं सोचता हूँ कि वो वहाँ पर है और उसका वहाँ पर होना किसी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं. It's swayambhu. वो स्वयंभू है, It's उसका होना. self-created, yeah? वो स्वयं ही निर्मित हुआ है. Or sometimes they say it exists from its own side. या कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी ही ओर से अस्तित्व में है. In other words, it exists independent of the situation I'm in. दूसरी तरीके से अगर कहा जाए तो जिन परिस्थितियों में मैं हूँ, उन परिस्थितियों पर मेरा होना निर्भर नहीं है. Actually, we're a little bit different every moment. लेकिन देखा जाए तो हर क्षण हम थोड़े से अलग होते हैं. I find it very, very interesting talking to different people. तो जब मैं अलग अलग लोगों से बात करता हूँ तो मुझे बहुत रोचक लगता है, दिलचस्प लगता है. Because I am a little bit different with each person. क्योंकि मैं हर व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अलग होता हूँ. I don't mean that I'm pretending or I'm making it up. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ या कुछ विशिष्ट तरीके से उनके साथ पेश आता हूँ. I've just spent some time with Mokshasara. तो मैंने अभी थोड़ा समय बिताया मोक्षसारा के साथ. So the interaction of Mokshasara and I brings out something particular in me and no doubt from her too. तो मोक्षसारा और मेरे बीच में जो वार्तालाप या बातचीत होती है तो उसमें से मेरा एक कोई विशेष हिस्सा बाहर आता है और वैसा ही उसका कोई एक विशेष हिस्सा बाहर आता है. I spent time with Sadhana Ratna and with Maitriji this morning. Yeah. तो आज सवेरे साधना रत्न और मैत्रीजीत के साथ मैंने समय बिताया. And there's a different I there each time. Yeah. और हर समय वहाँ पे एक अलग स्व उपस्थित होता है. Because we're relational beings. Yeah. क्योंकि हम एक रिश्ते में हैं, हम हमेशा किसी के साथ एक संबंध में होते हैं. I noticed this so strongly when I came off solitary retreat. और जब मैं एकांतवास से बाहर आया तो मैंने बहुत ही सशक्त रूप से इसको अनुभव किया. As I began to talk to people, I was surprised at how I was with different people. और जैसे मैं लोगों से बात कर रहा था तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि अलग अलग लोगों के साथ मैं कैसे अलग अलग होता हूँ. I don't mean there's anything wrong with that at all. It's normal, it's natural. तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत है, ये बहुत ही नैसर्गिक है, स्वाभाविक है. But each of those is dependent on the conditions. Yeah? लेकिन हर बार वो जो रिश्ता या व्यक्ति है, वो जो स्व है, वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है. I don't mean that, as I say, I'm pretending or adjusting, or it's just that something different comes out in different relationships. लेकिन मैं कोई ऐसा दिखावा नहीं कर रहा हूँ या मैं अपने आप को कुछ अलग तरीके से ढाल नहीं रहा हूँ. तो उस विशिष्ट परिस्थिति में कुछ विशिष्ट या अलग बात जो है वो उभर कर बाहर आती है. It's a bit like when you do the Vajrasattva practice, a different sort of a relationship develops from when you do the offering practice. Yeah.
तो जैसे ऐसा ही होता है, जैसे आप वज्र सत्व की साधना करते हैं तो एक अलग तरह का रिश्ता निर्माण होता है इस बात की तुलना में कि जैसे आप मंडल अर्पण का अभ्यास कर रहे हो उस वक्त के जो भाव. So if we can talk about a self at all, it's a self that's constantly changing and adjusting to different situations and different circumstances. तो अगर हम स्व के विषय में बात करना ही चाहे तो फिर हम ऐसे स्व के विषय में बात कर रहे हैं जो निरंतर बदल रहा है अलग अलग परिस्थितियों के संदर्भ में, अलग अलग वक्त में. But we think of the I as being like a diamond in the center of the universe which never changes. लेकिन हम स्व के विषय में ऐसा सोचते हैं कि जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में एक हीरा है जो कभी बदलता ही नहीं है. Then we think of it as being impartite, not capable of being made into bits. और फिर हम उसके विषय में ऐसा सोचते हैं कि वो एक ही है और छोटे छोटे हिस्सों में उसका विभाजन नहीं हो सकता. But this I that I'm projecting onto my life, I think of as a single thing. और ये जो मैं है जिसको मैं अपने सारे ही जीवन में देख रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ एक ही वस्तु के रूप में देखता हूँ. And I think of it as not being capable of being broken up into bits. और मैं उसके विषय में ऐसा सोचता हूँ कि इस मैं के और छोटे छोटे टुकड़े या हिस्से नहीं किए जा सकते. Because if I can break it into bits, which of those is myself? क्योंकि अगर मैं उसके टुकड़े कर देता हूँ तो उसमें से कौन सा टुकड़ा फिर मैं हूँ. I can break it up into 100 bits and I can say, well, that 1% is me. और मैं उसके 100 टुकड़े कर सकता हूँ और फिर कह सकता हूँ कि वो 1% मैं हूँ. But then I can break that up into 100 bits. लेकिन फिर मैं उस एक छोटे टुकड़े को भी वापस 100 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ. That 100% is me. और फिर वो 100 टुकड़े में हूँ. Wagare, wagare, wagare. और इसी तरह से चीजें आगे बढ़ते जाएंगी. So if it's a self, it must be an end point to investigation. तो अगर कोई स्व है ही तो फिर वो आपकी खोज का अंतिम बिंदु होना चाहिए, उससे आगे जाते आना नहीं चाहिए. When you take your surgeon's knife, you can't cut it. तो जब आप अपने चिकित्सक का चाकू उठाते हैं तो आप काट नहीं सकते हैं. So without us realizing it, we're constructing this idea of ourselves on this basis. तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है, लेकिन इन 3 बातों की बुनियाद पर हम हमारे स्व की कल्पना का निर्माण करते हैं. So if we can prove that these are not true, the idea of self collapses. तो अगर हम इस बात को साबित कर पाए कि ये तीनों बातों में कोई सच्चाई नहीं है तो स्व की जो कल्पना है ऐसे ही ढह जाती है या बर्बाद हो जाती है. That's what we're doing in the 6 element practice. और वही बात हम 6 धातुओं के ध्यान में कर रहे हैं. We're showing that there's nothing permanent in the 6 elements. तो हम इस बात को दिखा रहे हैं कि 6 धातुओं में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो स्थायी है, सनातन है, हमेशा बनी रहने वाली है. In the body, whatever we can point to arises in dependence on conditions and passes away. तो हमारे शरीर में जो भी चीज हम देख सकते हैं, जिसके भी तरफ उंगली करके निर्देश कर सकते हैं, वो किसी अन्य परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न होती है. If we really understand the mind in the deepest sense, there's nothing there to be permanent. Yeah. और अगर हमारे मन की पूरी गहराई तक हम उसको समझ लेते तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्थायी है हमेशा की. It's not a thing. वो कोई एक वस्तु नहीं है ठोस. So we're systematically looking through these 6 elements and we're recognizing nothing permanent, nothing independent, nothing impartite. तो इन 6 धातुओं को हम बहुत ही पद्धतिबद्ध से देख रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि उन 6 धातुओं में कुछ भी स्थायी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है और ऐसा नहीं है कि जिसको और छोटे हिस्सों में विभाजित किया नहीं जा सकता. So we're attacking Atma-drishti. तो हम आत्मदृष्टि पर हमला बोल रहे हैं. And if we attack Atma-drishti, well, Atma-moha goes. और अगर हम आत्मदृष्टि के ऊपर हमला करते हैं तो आत्म मोह बर्बाद हो जाता है. If we attack
Atmadrishti, well, mana and sneha have nothing to connect with. और अगर हम आत्म दृष्टि के ऊपर हमला कर देते हैं तो आत्म मान और आत्म स्नेह के पास कुछ ऐसा बचता ही नहीं है जिसकी वो किससे चिपक के रहे. So our main attack on Atman in the six element practice is through Atman Drishti. तो आत्म के ऊपर जो हम हमला कर रहे हैं 6 धातुओं के ध्यान के माध्यम से वो हम आत्म दृष्टि की सहायता से कर रहे हैं. We're of course attacking these in other ways as well. और निश्चित ही अन्य तरीकों से भी हम इन चारों पे हमला कर रहे हैं. Through Shil, we're attacking Atma, Sneha and Mana. तो शील वहाँ पर भी हम आत्म स्नेह और मान के ऊपर हल्ला कर रहे हैं. Because we're getting at the upper manifestations of them. Yeah. क्योंकि ये जिन स्वरूपों में प्रकट हो रहे हैं उनके ऊपर हम हमला कर रहे हैं. Do you see what I mean? So you're cutting down the undergrowth so you can see the soil. Yeah. तो आप समझ रहे कि क्या मैं कह रहा हूँ. आप ऊपर के पौधों को बर्बाद कर रहे हैं ताकि आप जमीन को देख पाओ कि और जमीन के नीचे क्या है वहां तक पहुंच. Then you can get the roots out. और जब आप उसको देख पाओगे ऊपर के पौधों को छाटने के बाद जड़ों को भी आप उखाड़ सकते हैं. These are the roots of our ignorance and therefore of our suffering. तो हमारे अज्ञान की ये जड़ें हैं और इस कारण से हमारे दुख के भी. And our Shila and Samadhi are helping us to get down to that level. और हमारी शील और समाधि जो है उस गहराई तक जाने में हमारी मदद कर रही हैं. Yeah, so that's clear. So and our reaction practice is also an attack through this route. Yeah. और हमारी जो प्रतिक्रिया देने के अभ्यास के ऊपर जो ध्यान देने का अभ्यास है वो भी उसके ऊपर हमला है इन जड़ों पे. Because our reactions in the end are based upon particularly sneha and mana, but of course on drishti too. क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं जो है निश्चित ही उसकी बुनियाद में हमारा स्नेह और मान होता है लेकिन हमारी आत्मदृष्टि भी उसकी बुनियाद में होती है. So I think our reaction practice and six element practice work hand in hand. तो ये जो प्रतिक्रिया देने के ऊपर ध्यान देने का अभ्यास है और जो 6 धातुओं के ध्यान का अभ्यास है ये दोनों साथ साथ चलते हैं. The six element practice helps you to see what is below your reaction. तो 6 धातुओं का ध्यान आपकी मदद करता है इस बात को देखने में कि आपकी प्रतिक्रियाओं की बुनियाद में क्या है, उसके नीचे क्या है. Reaction practice makes sure that your six element practice isn't just theoretical. और प्रतिक्रियाओं के ऊपर ध्यान देने का अभ्यास इस बात की तसल्ली कराता है कि आपसे कि जो 6 धातुओं का ध्यान कर रहे हैं आप तो केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं कर रहे या ऊपर नहीं कर रहे हैं. Because it's very easy to do the six element practice and have a wonderful experience of infinite mind. तो 6 धातुओं का ध्यान करना और एक असीम मन का अनुभव लेना बहुत आसान होता है. You come out so uplifted. और बहुत ही मतलब ऊंची मानसिक अवस्था के साथ आप ध्यान से बाहर आते हो. Then you see people going down to supper. और फिर आप देखते हैं कि लोग नीचे खाना खाने के लिए जा रहे हैं. And you think I must hurry and make sure I get mine. और फिर आप सोचते हैं कि मैंने भी जल्दी जाना चाहिए और मेरा खाना लेना चाहिए. In other words, it's still quite superficial, your recognition. तो दूसरे शब्दों में आपका जो वो एहसास है वो बहुत ही ऊपरी है. That doesn't mean it's useless. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपरी है इसलिए वो कुछ काम का नहीं है. But it needs to be accompanied by application to actual experience. Yeah? लेकिन उसके साथ आपका जो वास्तविक अनुभव है उसके ऊपर भी उसको लागू करते आना चाहिए. So you need to have a deep understanding of the empty nature of Atman. तो जो आत्म का खाली या शून्य स्वभाव है उसकी समझ तक आपको पहुंचते आना चाहिए. And then you need to apply that in your actual experience. और फिर आपके वास्तविक अनुभव में आपको उसको लागू भी करते आना चाहिए. And I think it'd be hard to find a better method than the one that Chandrashila and I have
been promoting, which is reaction practice. और मुझे लगता है कि दूसरा कोई तरीका ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा उस तरीके के अलावा जिसकी बार बार मतलब मैं और चंद्रशील बात करते रहते हैं कि प्रतिक्रिया जब हम दे रहे हैं तो उसकी ओर ध्यान देना. So you've experienced in the six element practice some degree of freedom from Atman. तो 6 धातुओं के ध्यान में आत्म से कुछ हद तक जो आजादी है उसको आप महसूस करते हैं. A little taste of it, yeah? और उसका थोड़ा थोड़ा स्वाद चखते हैं. So when you do the reaction practice, you're looking down into the roots of the reaction. और जब आप प्रतिक्रियाओं के आप ऊपर ध्यान देते हैं तो उस प्रतिक्रिया की जड़ें कहाँ हैं उसको आप देखते हैं. You see that underneath there's this sort of tight knot of self-interest, self-concern. और आप देखते हैं कि बहुत गहराई तक एक बहुत ही पक्की ऐसी गांठ लगी हुई है आपके आत्म के स्वार्थ की या लाभ की, हित की. But you've already experienced some relaxation of that. लेकिन पहले ही 6 धातुओं के ध्यान में आपने थोड़ी सी सहजता महसूस की है, उस गांठ को थोड़ा ढीला होते महसूस किया है. Sometimes that can happen in the six element practice, yeah? कभी कभी वो 6 धातुओं के ध्यान के दौरान हो सकता है इस गांठ का I ढीला. remember a point when I really did get some insight into all of this. I don't mean with a big stream entry, but just some understanding of it. तो मुझे याद है जब मुझे पहली बार इसके विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी, वो वाली नहीं जो मुझे श्रोतापन मतलब बना दे, लेकिन उसकी कुछ समझ मैंने प्राप्त की थी. I was leading the six element practice sitting there, I remember. तो वहाँ पर बैठकर मैं 6 धातुओं के ध्यान का नेतृत्व कर रहा था, मुझे याद है. And at that time I was having a very difficult time with another order member. और उस वक्त जो है कोई एक दूसरे संघ सदस्य हैं जिनके साथ में बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा था. हमारी कुछ बातें चल रही थी I'm not संघर्ष going to में. say who it is. तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो कौन है. But they were behaving very badly. They were really irritating and annoying. Yeah. तो बहुत ही बुरा वो बर्ताव कर रहे थे और बहुत ही चिड़चिड़ाहट मुझे हो रही थी. And they were really trying to hurt me. Yeah. और वो मुझे वास्तव में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. So I was leading the six element practice. और मैं 6 धातुओं के ध्यान का नेतृत्व कर रहा था. So this earth, water, fire, air, they're not me, they're not mine, they're not myself. तो ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरा स्व भी नहीं है. I was leading it so well. और मैं इतने अच्छे से उस ध्यान का नेतृत्व कर रहा था. But at the back of my mind, I was thinking, that man. और अपने मन में पीछे मैं सोच रहा था वो आदमी. And I was thinking about all the reasons why he was doing this and what I was going to say to him. और मैं दुनिया भर की हर बात सोच रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और मैं उसको जाके क्या बोलने वाला हूँ. Right at the same time. एक ही वक्त पे चल रहा था. Everybody there, oh, Subhuti is so good at leading. और सब लोग वहाँ बैठ के सुबुद्धि कितने अच्छे 6 धातुओं का ध्यान नेतृत्व कर रहे हैं. And Subhuti just doing the Dvesha Bhavana. और सुबुद्धि वहाँ पे द्वेष भावना कर रहे हैं. So at some point I became aware, yeah. और एक समय में मैं फिर इस विषय में जागृत हो And I गया. felt so ashamed, you know. और मुझे बहुत शर्म महसूस हुई. What am I doing? मैं Yeah. कर क्या रहा हूँ. And I sort of then turned the practice back on this set of thoughts, yeah. और फिर मैं सारे अभ्यास को इस और लेकर आया, ये जो विचार चल रहे थे उन विचारों की. And I stopped putting it onto him. और फिर मैंने वो सारी चीजें जो है उसके ऊपर थोपना बंद कर दिया. Reaction practice, this is not about him, this is about me. तो ये प्रतिक्रियाएं जो है ये उसके विषय में नहीं है, ये मेरे विषय में. And I stopped trying to think about it. और मैंने उसके विषय में ना सोचने की कोशिश की. Why did this happen? What was this? What was that? Yeah. ये क्यों हुआ, ये क्या था, वो क्या था, What happened in my childhood? Yeah. मेरे बचपन में क्या हुआ. I just felt this insecurity at the bottom of it all. और इस सब के तह में जो असुरक्षितता थी वो मैंने महसूस की. And it's difficult to say exactly how,
But suddenly I saw through it. और बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एकाएक उसके आर पार मैंने देख लिया। It was like a knot. तो जैसे एक गांठ थी And it just undid. और बस वो खुल गई, And there it was. I saw that I was free of that. और वहां पर उस समय में मैंने देखा कि मैं उससे मुक्त हो गया था। And I've largely remained free of it since. और तब से अब तक काफी हद तक मैं उससे मुक्त ही हूँ। Of that one, but there are others. तो उस गांठ से मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन दूसरी गांठें हैं। But that I was at least to a degree free of. Yeah. लेकिन उस गांठ से कुछ हद तक मैं जो है वो मुक्त हो गया। So it's the combination of these two approaches. तो ये जो दो परिप्रेक्ष्य हैं, इन दो परिप्रेक्ष्यों का ये संयोग है, एक साथ आना। A really deep understanding that it's impossible for there to be an Atman. तो बहुत ही गहरी समझ कि किसी आत्म का होना लगभग नामुमकिन बात है। But tackling this very automatic, instinctive belief. लेकिन ये जो बहुत ही स्वयं चलित अंत प्रेरणा होती है, उसको हम किस तरीके से उससे जूझ सकते हैं या निपट सकते हैं। And that arises just in the normal course of being awake in the day. और दिन में जैसे हमारी सहज ही मतलब जगी हुई अवस्था होती है, उस अवस्था में भी ये निर्मित हो जाता है। So do you understand this combination? Because this is really beginning to answer your question. तो क्या आप इस जोड़ को या इस संयोग को समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उनके प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया है। In some ways, if you're doing the six element practice deeply enough, it will release all the reactions. Yeah, they will go. अगर आप गहराई से छह धातुओं के ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो सारी ही प्रतिक्रिया को जो है वो मुक्त कर देगा और वो चली जाएंगी। You will be suddenly free of them. और आप एकाएक उनसे मुक्त हो जाएंगे। But most of us, we have to be moving more gradually. लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि उसकी ओर, उन गांठों की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। And that is working with our immediate reactive nature. और ये धीरे धीरे आगे बढ़ना मतलब हमारा जो तुरंत प्रतिक्रिया देने का जो स्वभाव है, उसके साथ काम करने से शुरुआत करके। Yeah, that's the way this practice works. Yeah. तो ये जो अभ्यास है इस प्रकार से अपना काम करता है। So I would say it's only going to be really effective for most of us if we're also working during the day. तो हम में से अधिकतर लोगों के लिए ये तभी परिणामकारक हो सकता है जब हम पूरे दिन भर भी इसके ऊपर कार्य करें। Noticing reaction, प्रतिक्रियाओं के ऊपर ध्यान देना, because it hurts. क्योंकि वो तकलीफ देती हैं। Taking responsibility for it, उसकी जिम्मेदारी उठाना, not projecting it onto others and blaming them. तो अपनी प्रतिक्रिया का कारण किसी दूसरे को नहीं बताना या उसको दोष नहीं देना। Feeling it very directly. बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से उसको महसूस करना, उसका अनुभव लेना। And trying to feel down into it. और पूरी गहराई तक अपने भीतर उसको महसूस करने का प्रयास करना। And trying to see its nature. और उसका स्वभाव क्या है उसको देखने का प्रयास करना। Not theoretically, but directly. तो केवल संकल्पनात्मक रूप से नहीं, तो प्रत्यक्ष अपने अनुभव में। If you've been doing the six element practice, you'll have a way to do that. तो अगर आप छह धातुओं का ध्यान कर रहे, तो आपके पास एक तरीका रहेगा उसको करने का। And I guarantee that you will have the same experience as I've had if you haven't had it already. और अगर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि फिर आपको भी वही अनुभव आएगा जो मुझे आया है, अगर अभी तक आपको वैसा कोई अनुभव नहीं आया। At a very deep level, it'll just go. और बहुत ही गहरे स्तर पर वो अचानक से चला जाएगा। Because it's nothing. It doesn't exist. It's just a construction. क्योंकि वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व है ही नहीं, वो केवल आपकी निर्माण की हुई एक रचना है। Okay?
I've got more to say about working with consciousness element, but let's just see if there's anything that comes up here. तो चेतना धातु के साथ कैसे काम करना है उसके विषय में भी मुझे कुछ कहना है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ है क्या आपके मन में अभी तक जो हुआ उसके विषय में. Hello? Anybody there? Or you? Ha. सेल्फ को डिफाइन करने के लिए माइंड के जो न्यूट्रल प्लेस है उसका कुछ इम्पोर्टेंस होता है और 6 एलिमेंट और न्यूट्रल प्लेस एक ही है. खुद ही पूछो प्लीज. आई डोंट अंडरस्टैंड हिज हिंदी. और 6 एलिमेंट है द न्यूट्रल प्लेस ऑफ माइंड. Huh? न्यूट्रल फीलिंग. Neutral feeling. Neutral feeling, yeah. And the 6 element, Yeah. there is any distinguished or same thing. How we define the self through the neutral place? There is any possibility? How do we define this self up to? Through the neutral place. Okay, through neutral There is feeling. Possibility some. Yeah, yep, yeah. You understood? Yes. So how do we relate the self to neutral feeling? Upeksha Vedana. Yeah. बरोबर है. How do we relate? The idea of the self, or how does the self relate to neutral feeling? Because I've explained it in terms of reaction and aversion and craving. Yeah. Both ways. Yeah. But how do you? Important Yeah. is of the neutral feeling. How Yeah. there is possibility to dealing the self Yeah. reaction and Yeah. Yeah. I'll tell you what. I'll just answer and I'll include the question. समझ गया. So what I understand the question to be is that so far I've talked about reaction in terms of reaction against and reaction for. तो अभी तक प्रतिक्रिया के विषय में मैंने ऐसे बात की कि मतलब प्रतिक्रिया किसी चीज के विरुद्ध और प्रतिक्रिया किसी चीज की ओर. But traditionally, and of course, those would correspond to a reaction to Sukha Vedana and Dukkha Vedana. तो पारंपरिक रूप से ये होगी प्रतिक्रिया सुखद वेदना की ओर और दुखद वेदना की. But there's another kind of Vedana, Upekka Vedana. लेकिन और एक प्रकार की वेदना होती है उपेक्षा वेदना. Upekka Vedana, which is really not much response one way or the other. तो उपेक्षा वेदना होती है कि बहुत प्रतिक्रिया नहीं होती है, ना इस ओर होती है ना उस ओर होती है. So how do we relate that to the self? तो उसका हम स्व के साथ संबंध किस प्रकार से देखेंगे? It's quite easy. बहुत आसान है. Basically, whatever it is that your Vedana is related to doesn't interest you. तो जिस भी चीज के साथ आपकी वेदना जुड़ी हुई होती है उस चीज में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होती. You know, you've got your own child. तो जैसे आपका अपना बच्चा होता है. And you feel great love and affection and attraction and craving. तो Yeah. बहुत प्यार, स्नेह, आकर्षण और आसक्ति उसके लिए आप महसूस करते हैं. Somebody else's child doesn't interest you और किसी दूसरे का बच्चा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है because it's आपको, not your child. क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं है. Do you see what I mean? So that the समझ में? yeah, upeksha vedana and the reaction of indifference it arises because it has no relevance to yourself. तो उपेक्षा वेदना जो है या किसी चीज को नजरअंदाज करने वाली जो भावना है वो इसलिए निर्माण होती है कि उसकी जो विषय वस्तु होती है उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होती. Is he satisfied or isn't he? Yeah, good. I got away with it. Anything else to clear up? और कुछ है स्पष्ट करने के लिए? The ability of language has different group. Is it the ability of language which form or the what we call construction of I? Huh.
So the question is, does the ability to use language contribute to, or is it the construction of I? तो प्रश्न इस प्रकार से है कि जो भाषा का इस्तेमाल करने की हमारी जो क्षमता है उसका कुछ योगदान है मैं की कल्पना की निर्मित में. I think you could say it's all part of the same bundle. तो मुझे लगता है आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक ही गट्ठर के हिस्से हैं. Basically what happens is we acquire the ability to translate our experience into abstract terms. क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक क्षमता होती है कि हम हमारे अनुभवों को कुछ संकल्पनात्मक शब्दों में अनुवादित करें. So we can think floor. तो जैसे हम सोच सकते हैं फर्श. For a dog, this is just this experience here now. Yeah. तो एक कुत्ते के लिए केवल इतना ही होता है कि अभी यहाँ का वर्तमान का अनुभव. But I can think of this under the category of floors. लेकिन मैं उसको एक वर्ग के अंतर्गत सोच सकता हूँ और वो वर्ग है फर्श का. So that category I carry conceptually. तो ये जो वर्ग है संकल्पनाओं के स्तर पर मैं अपने साथ लेकर घूमता And हूँ. I have a word for it. और उसके लिए मेरे पास एक शब्द भी है. So in the same way, I can abstract from my particular experience of my own volition an I that is abstracted from it. Yeah. तो उसी तरह से मैं अपने अनुभवों में से एक कल्पना को खींचकर अलग कर सकता हूँ और ये कल्पना होती है मैं की कल्पना. So I've got experiences yesterday. तो जैसे मेरे कल के कुछ अनुभव थे. Several experiences yesterday. बहुत सारे अनुभव मैंने कल लिए. Experiences today. आज बहुत सारे अनुभव लिए. All the way back to that little baby. और वो छोटे बच्चे से लेकर अब तक मैं अनुभव लेते आया हूँ. So I abstract from all those experiences the idea of I. और उन सारे अनुभवों में से मैं एक चीज को खींचकर बाहर निकालता हूँ वो होता है मैं की कल्पना. Yeah. So it's all part of the same bundle. तो ये सब प्रक्रियाएं जो है एक ही गट्ठर के हिस्से हैं. Time comes into it. Yeah. और इसमें वक्त अपनी भूमिका अदा करता है. Because once I abstract from the moment, then I can think backwards and forwards. तो जब किसी एक क्षण से मैं कोई एक चीज को बाहर निकालता हूँ तो मैं इसके आगे का और पीछे का भी सोच सकता हूँ. So yes, this ability to abstract underlies the self, language, time. तो ये जो चीज को अलग निकालने की क्षमता होती है ये इन सारी चीजों की बुनियाद में होती है मैं के समय के. So, and this is a huge evolutionary development. और ये बहुत बड़ा विकास है जो उत्क्रांति की प्रक्रिया में हुआ. There's no other animal that can do anything like that degree of it. और दूसरा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इस हद तक ये चीजों को कर सकता है. I study sheep because they live all around me. तो जैसे भेड़े हैं उनका मैं अभ्यास करता हूँ क्योंकि वो मेरे चारों ओर रहती है. And they can know grass. वो घास को जानती है. They know their own lamb. वो अपने बच्चे को जानती है. But beyond that, they know very little. और उसके परे वो बहुत कम बातें जानती है. Apparently, they can recognize 5 humans. और देखा जाए तो वो केवल 5 ही व्यक्तियों को पहचानती है. Around us, they all recognize Chandrashil. और हमारे आजू बाजू जो भेड़े रहती है वो सब चंद्रशील को पहचानती है. But anyway, you see what I mean? There's a very limited ability to abstract. तो उनके पास बहुत ही कम क्षमता होती है चीजों को अलग करके देखने की. Maybe in a way you could say no ability. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बिल्कुल उनमें क्षमता नहीं होती But है. because we can do that, we get an I. लेकिन क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं इसलिए हमारे पास ये मैं होता है. We better get off the philosophical ground quickly. Yeah. So let's just use the last few minutes to talk a little bit about consciousness element. तो आखिरी के चंद मिनट जो है वो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं चेतना धातु के विषय में बात करने के लिए.
There's a lot more to say about this, but I don't want to overload you. तो इसके विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बहुत भार नहीं देना चाहता. We maybe have to have another seminar some other time. Yeah. तो दूसरे किसी समय में हमें और सेमिनार की आवश्यकता पड़ सकती है. So the general effect of the practice is letting go. तो इस अभ्यास का जो सर्वसामान्य परिणाम होता है वो होता है कि आप चीजों को छोड़ पाते हैं. In fact, actually actively giving up. या एकदम सक्रिय रूप से आप उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं. And I don't know whether you experience this, but as the practice goes on, that becomes more and more subtle. मुझे नहीं पता आपने इसका अनुभव किया है या नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास में आगे बढ़ते हैं ये हमारा छोड़ देना और ज्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है. मतलब बारीक से बारीक चीजें हम छोड़. Because you're dealing with more and more subtle elements. Yeah. क्योंकि आप अधिकाधिक सूक्ष्म धातुओं के साथ काम कर रहे हो. So you're gradually letting go at deeper and deeper levels of subtlety. तो सूक्ष्मता की जो गहरे स्तर होते हैं उस स्तर तक आप उन्हें छोड़ने लगते हो चीजों को. When you come to the consciousness element, in a way there's nothing to let go of anymore. और जब तक आप चेतना धातु तक पहुंचते हो तब तक कुछ बचा ही नहीं होता है कि जिसे छोड़ना या त्यागना है. What ideally happens is that you just, as it were, float into the infinite blue sky. और आदर्श रूप से ऐसा होता है कि जो असीम अमर्याद ऐसा नीला आकाश होता है उसमें बस आप तैरते हो. One gets some experience of that. तो कुछ हद तक आपको उसका अनुभव आता है. But I think probably most people will find that they are not able to stay with that. Yeah? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा पाएंगे कि वो उस अनुभव में बहुत ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते. Because the mind keeps on turning. क्योंकि मन जो है एक चीज से दूसरी चीज की ओर जाते रहता है. Images keep coming up. छवियां आपके सामने आते रहती हैं. Feelings, Vedana arises. Yeah? भावनाएं, वेदनाएं निर्मित होते रहती हैं. Samnya arises. Yeah? संज्ञा जो है वो उत्पन्न होती रहती है. Concepts, thinking. संकल्पनाएं, विचार. And desire arises. और इच्छाएं निर्मित होती हैं. Samskara. Yeah? संस्कार निर्मित होते हैं. Because you can't just stop the train. क्योंकि आप रेलगाड़ी को रोक नहीं सकते. Once the train is on the tracks and rolling, it doesn't just stop dead. तो एक बार जब रेलगाड़ी पटरी पे उतर जाती है तो झप से एकदम वो नहीं रुकती है. Yeah, it takes time to stop. तो रुकने के लिए उसको समय लगता है. And of course what we're doing all the time is pushing it a bit more. और सारा समय हम क्या कर रहे हैं कि वो पहले से चल रही है और उसको धक्का दे रहे हैं. So you can't expect that you just let go and you're floating free and happy in the blue sky. तो आप ऐसे नहीं उम्मीद कर सकते कि आपने बस सारी चीजों को छोड़ दिया है और बहुत ही आनंद से जो है आप वो नीले आकाश में विहार कर रहे हैं. I hope you get some experience of that. तो मुझे उम्मीद है कि उसका कुछ हद तक आपने अनुभव लिया होगा. I think that's fairly likely. और ऐसा हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं. I remember the very first time I did it on my general retreat after I'd been coming for 3 months. तो मुझे याद है मैंने सबसे पहले अपने मतलब जनरल शिविर में इसको किया था. 3 महीने से मैं जुड़ा हुआ था संघ के साथ. Bhante led the practice. भंते ने उस अभ्यास का नेतृत्व किया था. And I really got an experience of consciousness as without limits. और मैंने वाकई चेतना का उस तरह से अनुभव लिया कि वो असीम है, उसकी सीमाएं नहीं है, मर्यादाएं नहीं. So I imagine that everybody's got some taste of that. तो मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि सभी ने उसका कुछ न कुछ अनुभव लिया होगा. Just letting go and relaxing in that state. तो बस हर चीज को छोड़ देना और उस अवस्था में एकदम सहजता से रहना. But then thoughts start arising, feelings start arising. लेकिन उसके बाद विचार उत्पन्न होने लगते हैं, भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं. So as they start to arise, you need to apply the same kind of analysis. और जैसे ही वो उत्पन्न होने लगते हैं तो फिर उसी प्रकार के विश्लेषण का आपको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है. Don't stop them. उन्हें रोकिए मत. But recognize their impermanence.
लेकिन इस बात को पहचानिए कि वो अनित्य है। As you've done with the physical elements, और जैसे आपने उन भौतिक धातुओं के साथ किया है, do it with the mental factors. तो वही बात जो है आपकी जो मानसिक बातें हैं उनके साथ भी आपको करना है। So a pleasant feeling arises within you. तो जैसे एक सुखद भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है, Or to be more exact, a sukhad vedna. या फिर सुखद वेदना उत्पन्न होती है, So you see it arising. तो आप देखते हैं कि वो उत्पन्न हो रही है And you recognize that it's impermanent, dependent on conditions. और आप इस बात को पहचानते हैं कि वो अनित्य है और इसका उत्पन्न होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है It's made up of parts. और वो बहुत सारे हिस्सों की बनी हुई It है। has no independent existence. उसका कोई भी स्वतंत्र ऐसा आत्मनिर्भर अस्तित्व नहीं है And you see it go again. और आप देखते हैं कि वो जा भी रही है। You see a thought arising in your mind. तो आप देखते हैं कि एक विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहा है You recognize this is a thought arising. और आप पहचानते हैं कि एक विचार है जो उत्पन्न हो रहा है And you recognize this is a thought passing away. और आप इस बात को भी देखते हैं कि ये विचार अब जा भी रहा है। If you can, you just stay with this state of universal consciousness. और अगर आपसे संभव होता है तो आप ये जो वैश्विक चेतना है उसके साथ रह सकते हैं। But if you can't, then you deal with the mental processes that start to obtrude. लेकिन अगर आप नहीं रह सकते उस चेतना के साथ तो जो भी मानसिक बातें उसमें बाधाएं उत्पन्न कर रही है तो उसके साथ आपको जूझना है, कार्य करना है By recognizing their true nature. और उनके वास्तविक स्वभाव को पहचान कर आप वो कर सकते हैं। Recognizing they're conditioned and impermanent and they don't have Atman. तो इस बात को देखना कि वो संस्कारित है, कई चीजों की मिलकर बनी हुई है और उनका कोई आत्मा नहीं है। So does this give you a bit better idea of how to work? तो और अच्छी कल्पना आई कि किस प्रकार से काम करना है। We will do the practice at 5 o'clock today. तो आज 5 बजे हम वो अभ्यास करेंगे And I'll go a bit more briefly over the first 5. और जो पहले 5 धातु है उसको मैं संक्षेप में लूंगा And I'll focus a little bit more on what's happening in the mind. और मन में क्या हो रहा है उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा। But all I'll be saying is, if thoughts arise, notice them, see their character. लेकिन मैं केवल इतना ही दोहराता रहूंगा कि अगर विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको देखिए और उनके गुण धर्म को पहचानिए। Apply the lakshanas to them, for instance. और उदाहरण के तौर पे लक्षणों की रोशनी में उनको देखिए, लक्षण लगाकर देखिए। Apply pratitya samutpada to them. उनको प्रतीत्य समुत्पाद लागू करके देखिए उन पर। There's nothing wrong with these processes taking place. तो ये जो भी प्रक्रियाएं घटित हो रही है तो कोई गलत बात नहीं है उनका घटित, It's natural. बहुत नैसर्गिक है, सामान्य। It's like, what I've said with the body, you're not trying to get rid of the sensations of earth. तो जैसे शरीर के विषय में मैंने कहा कि पृथ्वी धातु या पृथ्वी के कारण जो भी संवेदनाएं निर्माण हो रही है उससे हम छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। You're trying to change your way of being aware of them. तो उसके विषय में जागरूक होने की जो आपकी पद्धति है उसको बदलने का आप प्रयास कर रहे हैं। You feel the body. तो आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, But with a detachment. लेकिन उससे अनासक्त रहते हुए And without thinking mine. और मेरा शरीर है ऐसा उसके विषय में सोचे बिना। And you can feel a definite difference. और एक निश्चित फर्क को आप महसूस कर सकते I हैं। don't know whether you're experiencing this in, for instance, the earth element. तो मुझे नहीं पता कि आप मतलब पृथ्वी धातु को महसूस कर रहे हैं या नहीं। At the end I say, it's not me, not mine, not myself. अंत में मैं ऐसा कहता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरा स्व भी नहीं है। And these are words that the Buddha used in his version of the practice. Yeah? और ये शब्द वही शब्द हैं जिसका इस्तेमाल बुद्ध ने किया है जब बुद्ध इस अभ्यास को लिया करते थे। But then I say something like, experience it, और उसके बाद मैं ऐसा कहता हूँ कि उसका अनुभव लीजिए, but without attachment, लेकिन बिना आसक्ति, without thinking I and mine.
कि वो मैं है या मेरा है, इस प्रकार के विचार के which लिए। means without reaction. जिसका मतलब होता है कि उसे बिना कोई प्रतिक्रिया देते हुए। So it's the same that you're applying to the thoughts that arise, the feelings that arise, and so on. तो यही बात आप अपने विचारों के संदर्भ में भी करते हैं, उन भावनाओं के संदर्भ में भी करते हैं जो उत्पन्न हो रही होती है। There they are. वहाँ पर वो है, They're not me, they're not mine, not myself. वो मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा स्व भी नहीं है, They're just dependently arising. वो बस किसी अन्य बात के आधार पर निर्माण हो रही है। And you'll find when you do that, that they begin to dissolve very quickly. और फिर आप पाएंगे कि जब आप ऐसा करते हैं वो बहुत ही जल्दी पिघल जाती है, घुल जाती है, खो जाती है। And you'll find yourself experiencing just a state of very great upeksha, but on a higher level. और आप पाएंगे कि उपेक्षा की एक भावना को आप महसूस करते हैं बहुत ही ऊंचे स्तर की। So anything more on that? इसके विषय में और ज्यादा कुछ? Vaishali. जैसे हम ये जो धातु है 5 धातु, तो वो हम उधार ले रहे हैं और जो हम छोड़ दे रहे हैं, तो ये जो चेतना है, क्या वो भी हमने उधार ली है? Ingrezi. These 5 elements which we Right. we take borrowed. we borrow from this universe. Likewise, can we borrow chetnas? No, I think that the method has to be a bit different. Yeah. तो नहीं, उसके लिए पद्धति कुछ अलग होनी चाहिए। It's more that you recognize the real nature of Chaitanya. तो उसके विषय में ऐसा है कि चेतना का जो वास्तविक स्वभाव है उसको आप पहचानिए। You recognize that Chaitanya doesn't really belong to anybody. तो आपको इस बात को पहचानना है कि चेतना किसी के मिल्कियत की नहीं है। So right now we're conscious, yeah? तो अभी इस वक्त हम जागृत है, चेतन अवस्था में है। Yeah, everybody's conscious, I think. हर कोई चेतन अवस्था में है, जागृत है। Now, when we're being conscious, we think I am conscious. और जब हम चेतन होते, किसी विषय में जागृत होते, तो हम सोचते हैं कि मैं जागृत हूँ। But where is this I that is conscious? लेकिन ये मैं कहाँ है जो जागृत है? Where could it be? Yeah? ये कहाँ हो सकता है? It can't be in the body. वो शरीर में नहीं हो सकता, It can't be outside consciousness, वो चेतना के बाहर भी नहीं हो because सकता, how would it relate to consciousness? Yeah? क्योंकि अगर वो चेतना के बाहर है तो वो चेतना से संबंध किस प्रकार से स्थापित We करेगा? don't need to think I am conscious in order for there to be consciousness. तो चेतन होने के लिए या जागृत होने के लिए इस प्रकार सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि मैं जागृत हूँ। Do you see what I mean? Consciousness just is. तो क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? चेतना बस होती है। So we try to realize that consciousness is not involved with I and not I and all that. It's just not involved with it all. तो हम इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि चेतना किसी भी उलझन में नहीं है कि इसके साथ जुड़ी हुई, उसके साथ जुड़ी हुई, सारे पछड़ों से परे हैं। And we won't go on much longer. And in fact, when we think like that, it gets in the way. और जब हम उस प्रकार से उसके विषय में सोचते हैं तो वो फिर तरीका राह की बाधा बनता है। And the thinking of it is just an idea in awareness. और उसके विषय में उस तरह से सोचना ही वो जागृति में की एक कल्पना है, वो सोच ही एक कल्पना है। Yeah, so you work on that.
तो आप उसके ऊपर कार्य करते But I think if you think you've borrowed this consciousness, you think, who did I borrow it from? हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस चेतना को मैंने उधार लिया है, तो फिर ये भी आप सोचेंगे कि किससे उधार लिया है। And then think, can I have a different one, please? और फिर ऐसा भी, ये नहीं, ये नहीं चाहिए, दूसरी ले सकता हूँ क्या फिर मैं उधार? I don't think that works, yeah? तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस प्रकार से काम आएगा। It's more you just relaxing in consciousness as it is. तो ये इस प्रकार से होता है कि चेतना जैसी होती है वैसी ही आप उसके साथ एकदम सहजता से आराम से रहते हैं। Anyway, I think we've probably done. My brains are beginning to fry, and I think probably yours are too. तो मुझे लगता है कि हमने पूरा कर लिया, क्योंकि मेरा दिमाग उबल रहा है और हो सकता है कि आपका भी दिमाग गर्म हो रहा होगा। But I hope I've given you something to think about. लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सोचने के लिए कुछ बातें दी हैं। I hope I've given some answer to Chandrashil. मुझे लगता है कि मैंने चंद्रशील को कुछ हद तक जवाब दे दिया है। He'll definitely tell me later if I haven't. और अगर नहीं मिला है उन्हें जवाब, तो वो निश्चित रूप से मुझे बाद में बताने वाले हैं। But I won't react. लेकिन मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। But yes, I hope there's something you can work with more. लेकिन मुझे उम्मीद है कि और कुछ आपको अधिक मिला होगा जिसके साथ आप काम कर सकते And maybe you'll need to listen to all this again. हैं। और हो सकता है कि इन सब बातों को दोबारा सुनने की आपको जरूरत पड़े। But it occurs to me that in the next Sangharam, we might spend, maybe 3 weeks on the 6 element practice. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले संघाराम में हम जैसे 3 हफ्ते 6 धातुओं के ध्यान के साथ बिताएंगे। Because it has great bearing on the 5 Mula Yogas. Yeah? क्योंकि 5 मूल योगा जो है बहुत हद तक इसके ऊपर निर्भर करते हैं या इसके ऊपर आधारित है। So thank you all very much. And thank you especially to Mokshasara. She won't translate, I know. And so 5 o'clock on the cushion. तो 5 बजे अपने ध्यान के आसन पर